Good morning, student. Today we discussed in vector resolution method. In the previous lecture, we learned about the triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. In these two laws, we calculate the combined effect of a vector which is given to us. That is, if we have a vector A and a vector B, then its resultant is vector R, which is the composition of or addition of these two, vector A plus vector B. Okay, now resolution of a vector in a plane is just opposite to the composition of vector. In this case, we find the effect of a vector in a particular direction having the same effect. Okay, just opposite to it. For example, suppose we have a particle is moving in x direction and then it is moving in y direction, then we observe that its resultant is R, and this R have quality of x and y because it is the final effect of these two vectors. If we take it is as the form of displacement, so a particle is moving first from O to A is 4 kilometer, then it is moving toward left, A to B is 3 kilometer, then we observe its final displacement from O to B is 5 kilometer. Okay, now in resolving of vector we need to calculate कि इस 5 किलोमीटर का कितना पार्ट ओ ए डायरेक्शन में है और कितना पार्ट ओ बी डायरेक्शन में है. दिस कैलकुलेशन इज वी फाइंड बाय यूजिंग द रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर इन इट्स component. Okay, resolving of vector is usually a process in which a given vector is split into two different component of the same vector. Okay, that is, suppose we have a vector A, okay, in such a way. For calculating its direction toward x or toward y, in this case we not able to define कि किस डायरेक्शन में ये वेक्टर है. सो फॉर कैलकुलेटिंग इट हम इसके लिए एक अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं, दैट इज सपोज एक्स डायरेक्शन ये हो गई. तो ये जो गिवन वेक्टर है हमें ये एक्स डायरेक्शन के साथ एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बना रहा है. ओके, नाउ दूसरी एक कंडीशन इसकी है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर की. एक वेक्टर तो हम अपने अनुसार ले सकते हैं, वी आर टेकिंग अ वेक्टर अकॉर्डिंग टू अस, बट सेकंड वी नीड टू टेकन परपेंडिकुलर टू द लाइन विच वी एज्यूम, दैट इज दिस इन द वाई डायरेक्शन. तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकंड विल वर्टिकल कंपोनेंट. सो इन दिस केस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा स्टूडेंट, इसको हम डिफाइन करेंगे cos थीटा से. ओके, और वी से a cos थीटा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज डिफाइंड एज sin थीटा and we use it as a sin theta. Okay, now we define the condition as the vector A. Okay, so we have the triangle rule or we have the
पैरेललोग्राम रूल ऑल्सो। सपोज ये इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल बना लेंगे और वी से इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, देयरफॉर व्हाट वी गेट, रिजल्टेंट this is a verification of this parallelogram or resolution of vector. Resultant is equal to, we have the formula a cos theta whole square plus a sin theta whole square plus नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2a cos theta a sin थीटा एंड फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा अगेन अ cos थीटा। ओके, एंड दैट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x एंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y इज एट 90 डिग्री, सो दिस विल बिकम 90 डिग्री। ओके, एंड देयरफॉर दिस होल वैल्यू बिकम 0। It is clear? Therefore, we calculate that a square cos square theta plus a square sin square theta, and that value will become 0. So now under root a square is taken as common and we get cos square theta plus sin square theta. And you all know the sin square theta plus cos square theta is 1. Then you will get under root a square, which will get a, and this is the resultant. Okay, so this is the verification of resolving of vector, that a given vector can split into two components. One is its horizontal component and second it is vertical component, which have the same magnitude as the given vector. So first we write the resolution method or resolution of vector in plane. Okay, now resolution of vector in plane. Okay, resolution of vector is the process of splitting it into two component. Okay, next is the two component and the splitted vectors are called component of given
vector. Okay, components of given vector. Now resolution of vector. Resolution of vector is converse process converge process to the composition of vector. Composition of vectors. Okay, now rectangular component, or first we go for the vector component of vector, component of a vector which split are mutually perpendicular to cooler to each other. Okay, mutually perpendicular to each other. Hence the splitted component are also known as rectangular component of given vector. Okay, copy this till this point. Okay, students, for finding the components of a vector, suppose we have consider a vector A in a plane xy. Consider a
vector A in a plane xy, or we say in a xy plane. Therefore its rectangular components are mutually perpendicular, and represented by its adjacent side, sides, in which component along the x-axis is called horizontal component, and component along the y-axis is called vertical component. Okay, vertical component. Horizontal component is given by cos theta. Horizontal component is given by cosine of angle theta formed between them, and vertical component is given by sine of angle theta formed between them. Okay, now suppose a vector is given in xy plane, vector A. Okay, therefore its horizontal component स्टूडेंट हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. सो सपोज हमने ये वाला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिफाइन किया और ड्रॉ किया, जो कि जिस पर ये जो एंगल या वेक्टर ए है वो एक थीटा डिग्री बनाते हुए इंक्लाइंड हो रहा है. ओके, देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर दैट एक कंडीशन है कि जो हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है वो रेक्टेंगुलर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पर ही लेना है. ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी y डायरेक्शन एंड दिस वी हैव x डायरेक्शन. ओके, तो ये आपका डिफाइन होगा x एक्सिस और x i कैप यूनिट वेक्टर के बिहाफ से, और ये वाला होगा y और j कैप यूनिट वेक्टर. ओके, नाउ वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हमारे पास होगा एक्स आई कैप इज ए कॉस थीटा एंड दिस इज
ए साइन थीटा। इसको हम मेनी मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल कि हम इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें और उसके बाद इसका एक ड्रॉप उस पॉइंट से डालें, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा। तो इफ इट इज ओरिजिन O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, देयरफॉर OA OB ये हमारा ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर आएगा। और अगर हम इधर से देखते हैं तो OCBA, तो ये हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिजल्टेंट की कंडीशन मिलेगी। बाय यूजिंग द रूल, द रिजल्टेंट ऑफ रिजॉल्विंग वेक्टर A, रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट OA स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस 2OA OB cos थीटा। क्लियर? ओके, this I will write here resultant is equal to OA square OB square plus 2OA OB cos theta. Clear? Now what we have here, that we have OA is A square cos square theta, OB is A square sin square theta, and 2A square sin theta cos theta, and finally we have this cos theta. We use here it as cos 90. Okay, therefore what we find here, okay, therefore cos 90 will become 0, so this whole value becomes 0, and we get only A square as common, cos square theta plus sin square theta, and this value is 1, so we get A square into 1, and the resultant is equal to A, which is the effect of OX direction and OY direction in direction of OB as resultant. This is the component. Now student, we observe some properties of resolving of vector, which are: the resultant is given by, suppose this is now resultant, okay, and this we define as X and this we defined as Y, or we say in the same form. यहाँ पे हम एक दूसरा कंडीशन बना लेते हैं, और ये हमारा वेक्टर है, okay, so this is R, this is X and this is Y. Because it is rectangle, so it is also Y. Therefore X we have a resultant we calculate by using this A square plus X square plus Y square. And what is X? So answer is X is R cos theta, and what is Y? So it is R sin theta. Therefore X upon Y upon X we get here R sin theta upon R cos theta. So we calculate this,
tan theta is equal to x upon y upon x, y upon x. This is the equation of resolving of vector. This is equation 1 and this is equation 2. Equation 1 is give the single effect in the resulting direction, or second equation gives the direction of resultant along horizontal direction. Okay, now next we have in resolution of vector some applications. So first copy it, then we go for the application of resolving of vector. Okay. Application of resolving of vector or resolution of वेक्टर. ओके, पहली एप्लीकेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स, बोट एंड रिवर. बोट एंड रिवर प्रॉब्लम. ओके, बोट और रिवर प्रॉब्लम में क्या होता है स्टूडेंट, सपोज वी हैव अ रिवर जिसका जो वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर फ्लो है, और इस वाटर फ्लो की एक वेलोसिटी है वी आर. ओके, और इस रिवर की जो विड्थ है वो लेट डब्ल्यू है. क्लियर. एंड अ बोट और अ सेलर, अब एक बोट है जो इसको क्रॉस करना चाहती है, तो वो इस तरह से चलेगी. इसको क्रॉस करना है किसी बोट को, तो मान लीजिए कि वो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में चलती है. तो अगर ये इस डायरेक्शन में चलेगी तो इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी vb. पर हम दो कंडीशन को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कंडीशन, व्हेन इंजन ऑफ बोट विल नॉट स्टार्ट. व्हेन इंजन ऑफ बोट नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट नहीं है. तो अगर इसमें बोट चल रही है तो वो किधर जाएगी, तो हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं अगर इंजन स्टार्ट नहीं किया है तो ये रिवर की डायरेक्शन में जाएगी विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो इसके पास इस केस में वेलोसिटी ऑफ रिवर है और वही बोट की वेलोसिटी हो जाएगी. सेकंड केस क्या है, सेकंड केस इज व्हेन इंजन ऑफ बोट स्टार्ट. अब बोट का इंजन स्टार्ट है. जब स्टूडेंट बोट का इंजन स्टार्ट होगा तो वो अपनी डायरेक्शन में जाएगी. सपोज
वो इसको क्रॉस करना चाहता है। अभी तो ये इधर जाती थी, जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया तो उसने इसे क्रॉस करने के लिए अपना जो डायरेक्शन है उसे घुमाया, और वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। क्लियर? तो उसके पास एक वेलोसिटी बन जाएगी। तो उसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ बोट दिस। ओके, तो हम यहां देखेंगे कि जो पार्टिकल है वो दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो वो इधर जाएगा या इधर। तो आंसर है वो इन दोनों के एक पर्टिकुलर सिंगल इफेक्ट की तरफ जाएगा, और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो इस डायरेक्शन में कहीं गया। ओके, तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगी हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी v। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको बोट को क्रॉस करके, सपोज ये है इसका पॉइंट O, इसे A तक जाना है, और इस A तक जाने में वो बोट की डायरेक्शन में भी जाता है टुवर्ड B। तो स्टूडेंट A टू B तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये इस डायरेक्शन में चलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपने अभी नीचे निकाला कि क्या होगी, तो आंसर है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, रिजल्टेंट वेलोसिटी of crossing the river। okay, नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये वेलोसिटी है तो हमारी ये वी आर क्या हो जाएगी, तो वी आर इसका, ये इसके साथ इसने थीटा एंगल बना दिया। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या है, वी आर हो जाएगा v cos थीटा, एंड डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन विच इज VB, ये हो जाएगा v sin थीटा। ओके, तो एंड दीज टू आर इंक्लाइंड एट 90, देयरफॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज v is equal to given by under root vb square plus vr square। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी होगी। सेकंड, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, तो आंसर है इसका डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू vb अपॉन VR, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, अब कितना टाइम ये लेगा इसको ट्रैवल करने में, तो हमारे पास टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। तो टाइम का हमारे पास फॉर्मूला होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ओके, यहां पे स्टूडेंट एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अगर हमें इसे क्रॉस करना है, वो इसको क्रॉस करना चाहता है और O से पॉइंट A तक जाना है, और हम उसकी ये वाली वेलोसिटी ले लें O टू B, तो ये कभी भी A पे नहीं पहुंचेगा। ओके, सेकंड, अगर हम इसे क्रॉस करते हैं और इसकी वेलोसिटी हम ले लेंगे O टू A, मतलब रिवर की वेलोसिटी, तो ये कभी उसको क्रॉस करके पॉइंट A तक नहीं पहुंचेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम और कैलकुलेशन ऑफ टाइम in the case of displacement covered with a given velocity, ये always
इन द सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन की हमें लेनी है जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। हमारा डिस्प्लेसमेंट है O टू A, तो ये मैंने लिख दिया O टू A, और इस डायरेक्शन की उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आंसर है वेलोसिटी ऑफ बोट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसके पास, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना है, dw। ओके, टाइम इज इक्वल टू w इज विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, एंड अपॉन vb वेलोसिटी ऑफ बोट, और वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, देयरफॉर ये हमारे पास टाइम आ जाएगा w अपॉन vb। ओके, दिस टाइम इज मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम। ओके, बिकॉज उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3 और बोट की वेलोसिटी है 4, तो वो इस डायरेक्शन में ना जाके जाता है वो डायरेक्शन ओ बी की डायरेक्शन में, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है 5। तो इस केस में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लॉन्गेस्ट डिस्प्लेसमेंट, और ये लिख दिया हमने O टू B। ओके, एक ये केस है, इसको पहले उतारेंगे, आप कॉपी करिए, देन वी गो फॉर द सेकेंड केस विद द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, रिवर फ्लो। रिवर का फ्लो वी आर इस डायरेक्शन में, एक सेलर है जो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है फ्रॉम O टू A, और वो चाहता है कि इसी पॉइंट A पर पहुंचे। अगर उसको इस पॉइंट A पर पहुंचना है तो वो अपने बोट के डायरेक्शन को किधर रखेगा, तो हमने उसको ऑब्जर्व किया कि इस केस में वो अपने बोट की डायरेक्शन को इधर ना रख के इधर की तरफ रखेगा। ये उसकी वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई। ओके, इन दिस केस व्हाट इज हैपन, सो इस केस में हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। लाइक दिस, तो इस ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अब दिस वी गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी जिससे बोट आगे जाएगी टुवर्ड द सेम डायरेक्शन। इसको ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट, लाइक दिस।
सपोज इस केस में इस तरह से उसको जाना है, एक वेलोसिटी है लीवर की ये और बोट की वेलोसिटी है ये। तो अगर बोट इधर जाएगी तो लीवर उसको क्या करेगी, पुश करेगी टुवर्ड्स इट्स डायरेक्शन, तो ये यहां पहुंच जाएगा। लेकिन बोट का इंजन फिर से उसको कहां पहुंचाने वाला है, इसी डायरेक्शन में, लीवर उसको फिर से यहां पहुंचा देगी और इस तरह से वो करते करते अपनी फाइनल डायरेक्शन ए तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस केस में उसको टाइम तो ज्यादा लगेगा लेकिन वो पहुंचेगा अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, नाउ वी डिराइव द रिलेशन फॉर इट। इन दिस केस रिजल्टेंट वेलोसिटी इज, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। tan थीटा, अगेन ये है x ये है y, तो आपके पास आ जाएगा सेम VB अपॉन VR बट अब आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, 1 मिनट स्टूडेंट, इन दिस वी हैव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, वो ए पे ना जाके बी पे जाती है, तो एक पॉइंट आपके पास और हो जाएगा इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां वेलोसिटी कौन सी लेंगे, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट ए बी किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो हमारी यहां पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आर हो जाएगी, डेट इज एक्स इज इक्वल टू वी आर इनटू टाइम, जो हमने कैलकुलेट किया है। ये पहला केस था। अब यहां पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस केस में इसका जो टाइम होगा डेट इज अगेन द सेम विथ ऑफ रिवर W, लेकिन अब जो ये क्रॉस कर रहा है वो बोट की से क्रॉस कर रहा है या रिवर की वेलोसिटी से और रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो आंसर है अब इसका क्रॉसिंग जो हो रहा है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, डेट इज V। तो ये एक मैक्सिमम टाइम होगा इसका, मैक्सिमम टाइम, बट shorter distance। Okay, so copy this and today we close till this point. In the next lecture we learn about the projectile. Thank you.